darlings, welcome back to our channel. For all those who are new here, we are Aparna Jatin Shah Q, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. आज का वीडियो जो है वो बेसिकली मेरा नायका हॉल है, जो आपको ऑफ कोर्स थंबनेल से पता चल गया होगा। अभी थोड़े टाइम पहले देयर वाज अ सेल दैट हैड कम, सो आई थॉट जो पहले वाली सेल गई है उससे मैंने क्या क्या खरीदा, एट व्हाट रेट्स मैंने खरीदा, दैट आई डिस्कस विद यू। नाउ आउट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू मी, कुछ प्रोडक्ट्स amazing थे and कुछ products were so useless. I don't think I should have spent a penny on them also. So I'm going to give you my review. So next time जब नायका हॉल आएगा, I hope आप वो products में already आपको पता रहेगा कि आप खरीदो और किसका रिव्यू खराब है. So without wasting any time, let's get to the video. The first product that I bought are the brushes. So I used to have Pro Art brush for powder and for foundation. पता नहीं क्यों मुझे हमेशा Pro Art के brushes बहुत ज़्यादा hard लगते थे. I've learned, I think मैंने ये दो चीज़ों के लिए हमेशा से Pro Art यूज़ किया है. So I always assumed कि इसका texture ऐसे ही होते हैं brushes के. But somebody suggested another brush to me and believe in me, वो दोनों ब्रश आने के बाद my makeup base has become so much stronger, so much better, so much lighter. A lot of times we don't realize जितना ज़्यादा important product सही यूज़ करना होता है उतना ही important होता है to use the right application of the right brush. Now I'm not saying that you should buy 10,000 brushes for every different thing, but जो bristle है वो बहुत ज़्यादा important होता है. वो कितना soft है, कितना जल्दी वो makeup pick कर रहा है, वो कितना easily आपके face पे apply हो रहा है, वो सब चीज़ें बहुत matter करती हैं. So it's not about whether you should buy lower priced or higher priced. You should buy something that is good quality. And I think हर range में good quality brushes आते हैं. Now the first one that I picked up is this powder brush. The other thing that I ordered is this Pack ka foundation brush. Now this is how this looks, and it has a superb consistency of the bristles. Mostly ये निकलता नहीं है. इसके पहले मैंने एक दो और जो यूज़ किए थे, वेगा का और आई थिंक प्रो आर्ट का, वो दोनों बहुत अनकंफर्टेबल थे. दोनों से मेरा एप्लीकेशन यूज टू नॉट बी एज स्मूथ. इससे माई एप्लीकेशन इज ऑल्सो सुपर स्मूथ. तो या दिस इज द सेकेंड थिंग दैट आई बॉट. नाउ फॉर द आई शैडो पैलेट, आई बॉट अ वेरी ह्यूज बट अमेजिंगली प्राइस्ड. दिस आई बॉट, if you can see इसमें कितने सारे कलर्स हैं एंड इसका टेक्सचर इज टू डाई फॉर. इट इज सो क्रीमी, सो नाइस. पिगमेंट्स आर वेरी गुड. आप एक बार भी लगाओगे ऑलमोस्ट इमीडिएटली विद योर, स्पेशली विद योर फिंगर, इमीडिएटली एक एप्लीकेशन पे ही आ जाता है. आपको बार बार नहीं लगाना पड़ता. तो डील आजकल यार 2000 तक में तो एनी गुड छोटा पैलेट ऑफ गुड क्वालिटी कम्स, एंड दिस वाज सच अ गुड क्वालिटी. आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर so many of my looks that I'm trying to create. So I am very happy, especially with the pricing that I got it at. Now the next thing that I bought is the face palette of Milani. इसमें ये हाइलाइटर है which is a very beautiful color. This is the bronzer जो आप कट के लिए यूज कर सकते हो for cutting any kind of shape that you want of your face. These two are blush. Now I am constantly doing this is because आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि ये वाला थोड़ा shimmer side है, ये matte side है. ये तीन जो है these are your eye shadows. बीच वाला थोड़ा सा shimmer है और ऊपर और नीचे थोड़े से different shades है with little matte on it. So this is such an amazing palette. If you want to travel light, then you just have to carry this. और इसमें आपके eyeshadow, bronze, your highlighter, your blush, everything is there. And इसका pigmentation is superb again. In fact, ये मैंने अपने लिए खरीदने के बाद I told about this to my mom and she actually bought it for my sister also. Now the next thing that I bought is this loose powder. It is the Fit Me loose powder. A lot of times जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ उसके बाद when I used to put any other powder, 2-3 ब्रांड्स मैंने यूज किए, but I did not feel कि मेरा फेस बहुत अच्छे से पैक हुआ. But for the first time ever since I've started using this Fit Me, my foundation and concealer, उसके बाद ये लगाते ही I actually feel like there is a layer on my face which is very light, but उसके ऊपर का सारा मेकअप that I do वो अंदर से जो बेस मेकअप है वो रिमूव नहीं होगा. So I have fallen in love. I think मैं बहुत टाइम से ये वाला यूज कर रही हूँ. जब से ये मेरे पास आया I think मैं यही यूज कर रही हूँ. Now the next palette that I bought was Huda Beauty. ये मुझे बहुत टाइम से खरीदना था but it was for 5,000 something and I was not finding it. I mean, I'm sure Huda Beauty is as good, but मुझे ऐसा लग रहा था कि I personally didn't want to spend 5,000 on one palette which was this small, but I got it at such a good price. और
खरीदने के बाद आई एग्जैक्टली नो वाई हुडा ब्यूटी इज प्राइस्ड एट व्हाट प्राइस इट इज, बिकॉज इसका पिगमेंट इज टू डाई फॉर. इसके कलर्स आर सो अमेजिंग, इट्स सो क्रीमी टेक्सचर्ड. आई हैव फॉलन इन लव विद दिस. बहुत ज्यादा मैंने ये पैलेट यूज किया है. Whenever I'm going out for any kind of parties and all, I'm always using this. So yeah, this is another one that is amazing. So the next thing that I bought is this sponge and brush cleaner. This is by Forever 52. Normally मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं मोस्टली वेट टिश्यू यूज करती हूँ जो मेकअप रिमूवल का होता है. अगर वो नहीं अवेलेबल होता है तो मैं कॉटन के संग ये यूज कर लेती हूँ. एंड दिस इज सो अमेजिंग. इमीडिएटली इट वाइप्स ऑफ. अगर आपके पास टाइम नहीं है टू वॉश ऑफ योर ब्रश and then let it dry, so immediately you can use this and this is superb for it. Now the next thing that I ordered, ये actually मुझे बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गया. एंड ये मैंने ऑलरेडी 3 इसका ऑर्डर किया था, 2 मैंने यूज कर लिया. आई थिंक वो हट भी गया है. दिस इज द थर्ड वन. दीज आर बाय स्विस ब्यूटी एंड ब्यूटिफुल लैशेस. इसको लगाने के बाद मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा हैवी नहीं फील होता है, इवन व्हेन आई पुट लाइक अ लॉट ऑफ मेकअप ऑन माय आई. सो दिस इज लाइक अ सुपर्ब बाय. और ये मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, बट आई थिंक ये अराउंड 99 का ही था. सो विच वॉज वेरी गुड बिकॉज ये 4 या 5 बार मैंने आराम से यूज किया है ग्लू हटा के. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई यूज मेजरली इज दिस ब्लैक कैनवस, जो आई थिंक मैं ऑलरेडी 4-5 यूज कर चुकी हूँ और उसके बाद अब मैंने ये के ब्यूटी का वापस से मंगाया. दिस इज हाउ इट इज. सो इसके साथ जो मैं शेप बना पाती हूँ अपने आईलाइनर का, वो मैं और किसी भी आईलाइनर में सो फार अभी तक नहीं बना पाती. ये कहीं भी मतलब कितनी बार भी मेरा खत्म हुआ है, ऑलवेज मेड श्योर कि 1-2 और के साथ मैंने ये जरूर रखा है. बिकॉज थोड़ा भी डिफिकल्ट अगर मुझे लैश बनाना है तो दिस इज इट फॉर मी. नाउ द अदर थिंग दैट आई बॉट वाज दिस एल्फ. This has a superb formula. इसमें basically एक glitter रहता है which is superb for any kind of eye makeup that you are doing that needs glitter. आप base makeup कुछ भी कर लो और थोड़ा सा इसको lightly लगा लो. It looks so pretty. Traditional makeup that you require इसमें बहुत amazing लगता है. आपने अगर मेरा खजुराहो वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने यही यूज किया था अपने येलो पोशाक के संग. And so many people commented that your eyes are looking beautiful. So this is like an amazing product. So Nykaa का I ordered this, which was obviously at lesser price, but ये इतना ड्राई था. I had to actually message them and tell them कि ये literally इतना ड्राई है कि नीचे से ऐसे cracks यहाँ पे दिख रहे थे. So obviously the liquid was not full and ये even to the lip it is not staying too much. So I was very unhappy. Even though मैंने कम में खरीदा था because of the sale, वो भी मुझे लग रहा है कि मैंने waste कर दिया अपना पैसा. So these 2 shades are beautiful, but it was not worth buying. Now another thing I was very upset to use is the Rene. Now ये basically 5 colors होते हैं इसमें and ये जो हम छोटे थे तो एक पेंसिल आती थी अगर आपको याद हो, तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला ऐसा होता है कि आप इसको ऊपर करो, ये वाला अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये नीचे से डाल के दूसरा कलर यूज कर लो. तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली. एंड यूजुअली यही होता है कि आप बहुत ज्यादा इतनी बड़ी बड़ी लिपस्टिक्स यूज करते करते बोर हो जाते हो. तो दिस इज वेरी लिटिल लिपस्टिक, सुपर्ब फॉर इट्स प्राइसिंग. बट जितना इस पे काम किया है इसके प्रोडक्ट टू हाउ इट लुक्स द वे इट शुड बी, वो बहुत ज्यादा काम किया. बट आई थिंक इसके फॉर्मूला पे इनफ हैज नॉट बीन वर्क्ड बिकॉज आई थिंक 4 to 5 sips ऑफ कॉफी एंड यहाँ से पूरा लिपस्टिक गोज. एंड उसके बाद इफ आई गो टू द वॉशरूम एंड रीअप्लाई, तो 2 बार आपने अगर रीअप्लाई कर लिया जब चला गया है अगर, तो वो इतना केकी हो जाता है कि वो लिटरली ऐसा लगता है कि आप कुछ खा रहे हो तो वो उसके साथ ही लाइक देयर इज अ लेयर जो अंदर जा रही है. सो आई डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल. बट या इफ यू वांट टू यूज इट फॉर लॉन्गर लाइक मोर देन हाफ एन आवर 1 hour, it's a bad choice. One of the lip shades that I bought and I loved is this Nykaa. So ये basically लगता है ऐसे बोल्ट लिपस्टिक जैसा, but it's like this. And इसका texture is so creamy. एंड वेन यू अप्लाई इट थोड़ा सा वो स्टिक होता है, बट उसके बाद इट लास्ट रियली लॉन्ग. मेरे लिए बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्ट किया है एंड आई हैव लव्ड दिस. मैं ये बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ. सो दिस वाज वन प्रोडक्ट ऑफ Nykaa दैट आई फेल फॉर. एंड या आई थिंक सो फार दीज आर द थिंग्स दैट आई बॉट. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपने क्या क्या इसमें से यूज किया है या आप क्या क्या अपने कार्ट पे डाल के रखने वाले जो आप मंगाओगे अभी नेक्स्ट सेल में. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स whether you enjoyed this vlog or no, and if you did, please consider sharing it with your friends and subscribing to my channel. And until I see you guys again, keep shining.